Hello, friends. Welcome back to your own program, Engineer's Guide again. I'm your host, Engineer Sushil Kotwal, here to take you back to technical skill suffer again. So, let's start with the same saying again. You don't know what you don't know. So, what to do? Look for a person who knows about it. मित्रों, आपकी मेरी हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग उनसे निपटते हैं, निजात पाते हैं. घबराना जरूरत नहीं है. क्या करना है? फॉलो ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ओके, दैट इज कॉल्ड SOP. SOP मीन्स चाहे वो एजुकेशन का इशू हो, चाहे वो करियर का इशू हो, चाहे वो आपकी बिजनेस का इशू हो, वट एवर इट इज, there are always problems and there are multiple solutions of that problem. निकलना कैसे है? First of all, make a proper analysis की प्रॉब्लम क्या है. Make a proper diagnosis कि वो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, यानी कि जड़ क्या है. देन उस जड़ के ऊपर में उसको कैसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है. Come out with the best possible solutions, then apply it. Let's start with the generic issues first of all. Do you know how many that universities are presently serving Indian society? Total 993 universities are presently serving Indian society. And how many are totally technical universities among them? Around 143 universities are generating engineers or technocrats from India. As per MHRD data, approximately 3.88 million students are getting enrolled every year. Are they all getting the job? No. And this is the actual surveys what we have seen in last few years. As per that surveys, only 40% students are getting jobs in several sectors. And out of that, how many are getting jobs in their own domain? Means, अपने फील्ड में कितने लोगों को जॉब मिल पाती है या कितने कर पाते हैं? Only 20%. Hardly 20%. What is the basic reason behind it? Isn't there jobs available in the market? Or are they not capable for that type of jobs? That is a question for both of the things. Means, is our industry flourishing that much कि उनके पास में जॉब हैं, उतनी अवेलेबल हैं, या हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है? तो इस चीज को अगर एनालिसिस किया जाए ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स, तो as per the recent analysis by our team, there are 6 to 7 major issues which are need to be addressed to improve the situation. First is the students are considering engineering as a normal graduation. Second, our colleges and universities are producing certified engineers. They are not able to produce educated or qualified engineers. The problem is with our educators also. Fourth point is majorly the not properly updation of syllabus. Fifth point is mindset of the students. Sixth point is proper technical language and soft skills. So the first point is, आजकल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन को एज ए नॉर्मल ग्रेजुएशन कंसिडर करने लग गए हैं. देयर मे बी मल्टीपल रीजंस. मे बी दैट इज ए पेरेंटल प्रेशर, यानी कि उनके पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हो कि नहीं, तुमको इंजीनियरिंग ही करनी है. या पीयर प्रेशर है कि मेरा ये दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा. या सोशल प्रेशर है कि मेरे को सोशली रेपुटेशन बना के रखना है, मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं देखूंगा अगर इस फील्ड में होती है तो ठीक है, नहीं तो किसी और में चला जाऊंगा. एंड
because of these reasons, and that is the one of the major part what I understand accordingly. तो उससे क्या होता है, the number goes worst. जैसे हमने 20% बोला कि ओनली 20% ही जो है वो अपनी फील्ड में जॉब ले पाते हैं. सो उसका इंटरेस्ट जो है मतलब उस फील्ड में नहीं है, बट इवन दो दे आर गेटिंग एनरोल्ड ओवर देयर. फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम इज बेसिकली आवर इंस्टीट्यूट्स are working as a jig and fixture factory. Means they're repeatedly generating the engineers. The engineers are not educated actually. They are just getting trained. Trained for what? Trained to be a follower. Means उनको सिर्फ फॉलो करना सिखाया जाता है कि जो आपको बता दिया जस्ट उसको फॉलो करो एंड विल गिव यू द सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट है, ले लो एंड यू आर एन इंजीनियर. वी डोंट नीड सर्टिफाइड इंजीनियर्स, वी नीड एजुकेटेड इंजीनियर्स जो समझ पाएं, जो सीख पाएं, जो इंटरेस्ट से काम करें, जिनको एक्चुअली टेक्निकल फील्ड में लॉजिक समझ आता हो, जो हमारे को इन फ्यूचर साइंटिस्ट बन पाएं, एक्चुअल इंजीनियर्स बन पाएं, एक्चुअल टेक्नोक्रेट्स ऐसे बन पाएं जो हमारी फ्यूचर को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को रास्ता दिखाएं, उनको बताएं करना क्या है, कैसे है, हाउ टू डेवलप द इंडिया. भारत विश्व गुरु सिर्फ बोलने से नहीं बनेगा, करना पड़ेगा. एंड हम लोग उसके लिए तत्पर हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं. इसीलिए लास्ट वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आइए सब मिलके भारत को विश्व गुरु बनाते हैं. कम से कम अपना पार्ट तो प्ले करें. हम लोग अपना पार्ट प्ले करेंगे तो डेफिनेटली बाकी लोग भी लगेंगे. चला था अकेला, जैसे जैसे चलता गया कारवां बनता गया. वो चीज को फॉलो करना है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एटलीस्ट अपना पार्ट प्ले करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीयर प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में, पेरेंटल प्रेशर में आके जबरदस्ती ये करियर चूज नहीं करना है. इफ यू रियली हैव इंटरेस्ट तो ही टेक्निकल फील्ड में आइए. अदरवाइज जिस फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हैं, जिस फील्ड को आप लाइक करते हैं, इंटरनली अपनी खुशी से अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करिए, उसमें अपना करियर बनाइए. सेकेंड थिंग, इन दैट अपने इंस्टीट्यूट्स वी नीड टू इंप्रूव द स्ट्रेटजी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, एंड we will be advising them, we will be supporting them to change the scenario that हमारे जो इंजीनियर्स निकलें कॉलेज से वो एक्चुअल टेक्नोक्रेट्स हों, उनके पास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हों, उनके पास में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हों. सो पॉइंट नंबर 3, lack of quality educators means there's not only a problem with the students or colleges only, we are lacking with the quality educators also. Say that, or we can say like that, means that is a social dilemma sort of. Instead of being that only pinpoint that that is a student's problem or college problem, or means overall system is we need to improve. Since ages in India, gurus, teachers, educators are considered as a noble profession, respectful. We were worshipping them as if they are the gods, because they are giving us the knowledge, they are sharing their life experience with us, they are giving us what they have observed, whatever they have absorbed, okay, whatever they know they are open to share with us. So what is our responsibility? We were giving them respect, we were giving them what they actually deserve. But now, due to commercialization, we are having the problems with the quality educators also. As number of colleges are increasing, तो क्या हो रहा है, IITs हो गए, IIMs हो गए, that higher educational institutes हो गए अच्छे वाले, they are somehow able to retain the quality teachers, but 3 tier 4 that colleges are not able to retain them because of the commercialization of the education. We have commercialized the education. Actually, it shouldn't be commercialized. As per my understanding, it is not to be commercialized. It is a social responsibility, and we should keep education as a social responsibility in the front.
Point number 4. As we know, everybody understood that technical means the domains are changing frequently. Technology is rapidly changing. So, are we updating our syllabus in line with that? Or it is already obsolete? We need to revisit the syllabuses, whatever we are teaching to our students, whether that is really up to mark. क्या वो काम कर पाएंगे जो उनको बाहर जाके, इंडस्ट्री में जाके या सोसाइटी में जब वो बाहर निकलेंगे कॉलेज से, तो क्या उस लेवल के ऊपर में उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी? That is a really serious issue. Point number 6. Because of this overall scenario, the mindset of students are changed in that a way that they are only focusing on getting the grades, not focusing on getting the education. Means क्या सीखा, क्या अंडरस्टैंड किया, क्या समझा, उसके ऊपर कुछ एम्फेसिस नहीं है. एम्फेसिस किसके ऊपर है? नंबर कैसे अच्छे आएंगे, ग्रेड्स कैसे अच्छे मिलेंगे. बिकॉज कुछ को आगे एडमिशन लेना है, तो उनको अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे तो आगे एडमिशन नहीं मिलेगा. कुछ को नौकरी लेनी है, अगर वो रिज्यूम में नंबर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? दैट इंस्टीट्यूट और दैट कंपनी विल नॉट कंसिडर देम फॉर दिस टेकिंग द इंटरव्यू इवन. सो ये सब चीजें जब हम लोग मिलाते हैं, दैट कम्स आउट टोटल एज ए सोशल डायलेमा कि अब करना क्या है. Problems everywhere. Adding to it, there is problem with the language and soft skill also. In India, we have around 447 live languages, means जो अभी भी बोली जाती हैं, and out of that 270 are mother tongues. क्या इसमें से एक भी ऐसी लैंग्वेज है जो आज के टेक्निकल मींस डोमेन में को सपोर्ट कर सके? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. कई बार क्या होता है कि ठीक है, वी आर हेयर नॉट टू डिफेम एनीथिंग. लैंग्वेजेस हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, रिस्पेक्ट करना बनता है, बट एज ए लैंग्वेज, नॉट एज ए कम्युनिकेशन मेथड. या तो अपने पास में कुछ ऐसी लैंग्वेज हो, कोई ऐसी एक लैंग्वेज हो जो उस लेवल पे हो कि हमारी जो आजकल के टेक्निकल नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके, या अपने को समझना पड़ेगा, अपने को अपना मन समझाना पड़ेगा कि अभी प्रेजेंट हम सिचुएशन में हैं, अभी फ्यूचर में उसके लिए क्या करना है. इंडियन लोगों की, यानी कि हमारे लोगों की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? हम लोग हिस्ट्री में जीना जानते हैं, बट somehow it's a very good part. जो हमने पहले किया उसकी अच्छाइयां जरूर फॉलो करनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो गलतियां कर चुके हैं उसी को रिपीट करते रहना बार बार, इज इट ए गुड थिंग? नॉट एट ऑल. तो क्या करना चाहिए? करना क्या है? अब भी जो इंप्रूवमेंट की जा सकती है उसको इंप्रूव करो. पहले जो गलतियां की हैं उससे सीखो, उसको इंप्रूव करो. जो पहले अच्छाइयां थी उसको क्लब करो, एंड फ्यूचर के लिए प्लान करो कि फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट द स्ट्रेटजी वी शुड फॉलो. तो ठीक है, माना कि 200 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने फोर्स किया कि ठीक है, उनकी लैंग्वेज अपने को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एंड अपनी किसी भी एक लैंग्वेज को इवॉल्व होने के लिए टाइम नहीं मिला. वी कैन थिंक ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, हम लोग अभी अपनी किसी न किसी लैंग्वेज को इवॉल्व होने के लिए सपोर्ट करेंगे एंड उस लेवल पे लेके आएंगे कि इन फ्यूचर वी कैन कंपेयर विद जर्मन्स, वी कैन कंपेयर विद इटालियंस, वी कैन कंपेयर विद फ्रेंच, मीन्स जो लैंग्वेजेस में टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, रशियंस. बट प्रेजेंटली सिनेरियो क्या है? क्या अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम लोग प्रेजेंट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल दें? आई डोंट बिलीव इन दैट. सॉफ्ट स्किल्स, हम लोग सिनेरियो को नहीं देखते हैं, हम लोग सिचुएशंस को नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ फॉलोअर्स हैं. क्या करना है सॉफ्ट स्किल्स का?
मीन्स अगर आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आपको लैंग्वेज प्रॉपरली होल्ड नहीं है आपका उसके ऊपर, हाउ टू ग्रो? बाहर निकलोगे मार्केट में, हु विल हायर यू? दैट एवरीथिंग नीड टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिक मैनर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? कॉलेजेस. 7th पॉइंट. मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई की, मैंने उस कॉलेज से पढ़ाई की, उसने उस कॉलेज से पढ़ाई की. अभी हायरिंग मैनेजर ने किस कॉलेज से पढ़ाई की एंड किस कॉलेज को वो प्रेफर करता है, दैट्स अगेन अ मेजर प्रॉब्लम. तो आज हमने आपको प्रॉब्लम्स बताई कि एक्चुअली कितने टाइप्स की, मतलब 6 to 7 मेजर पॉइंट्स हमारी टीम ने एनालिसिस करके ये मेजर पॉइंट्स निकाले. टाइम बहुत हो गया है, आगे डिस्कस करने के लिए अगर जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा ये एपिसोड. सो एडवाइस यही है, ठीक है, हम लोग आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर मंथन करेंगे, आपसे भी एडवाइस करेंगे, इसके ऊपर मंथन करिए, सोचिए इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसा हो सकता है, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डायलेमा, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. बैठेंगे, शेयर करेंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, आप हम मिलके आपके प्रॉब्लम्स, हमारे सॉल्यूशंस, हमारा एक्सपीरियंस, विल डिस्कस टुगेदर, विल सी दैट व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस. जुड़े रहिए, देखते रहिए योर्स इंजीनियर गाइड.